قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ دوستان محترم، یہ مہینہ ماہ ربیع الاخر شریف کا جو اپنی دامن میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان واپس تشریف لایا، اور ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس ماہ مبارک میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس و مطہر بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظر پیش کرتا ہے اور آپ کے توسل سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سالہ سال کے مجاہدے کے بعد میں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا جب تک خدائے تعالیٰ مجھے نہ کھلائے، اور کچھ نہ پیوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ پلائے۔ پھر 40 دنوں تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ گیا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، پھر مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنے دستے کرم سے مجھے کھلایا پلایا اور فرمایا کہ عبد القادر، تم نہیں کھا پی رہے ہو بلکہ میں خدائے تعالیٰ کے حکم سے تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، تمہارا عہد پورا ہو گیا ہے۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اعلی کلمت الحق یعنی حق بولنا مرد مومن کے لیے بہت ہی اعلیٰ ایمان اور قیمتی جوہر ہے۔ حضور سراپا نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہنے میں بہت جری اور نڈر تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو حق کے معاملے میں آپ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ خلیفہ بغداد نے جب ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم کو قاضی کا عہدہ سپرد کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر خلیفہ وقت کو اپنے وعظ میں للکارا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اے خلیفہ، تو نے ایک جابر و ظالم کو خدا کے بندوں پر حاکم بنا دیا ہے، تو ہوش رکھ کہ کل خدائے تعالیٰ قہار و جبار کے دربار میں تجھ کو نادم و شرمندہ ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجلال حق گوئی سے خلیفہ بغداد کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال لرزہ براندام ہو گیا، اور خلیفہ بغداد نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ابو الوفا یحییٰ کو فوراً قضا کے عہدے سے معزول کر دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر واعظ میں فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر اس وقت 313 اولیاء کرام جو واعظ کی مجلس میں حاضر تھے، سب نے اپنا اپنا سر جھکا کر عرض کیا کہ اے سرکار غوث اعظم
आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका कदम मुबारक हमारी गर्दनों पर ही नहीं बल्कि आपका कदम शरीफ तो हमारे सरों और हमारी आंखों पर है। और उन तमाम बुजुर्गों ने देखा कि तमाम रुए जमीन के औलियाए किराम आपके हुक्म पर अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खड़े हैं और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब मुबारक पर अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी। और मदीने वाले आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता किया हुआ खलात करामत औलियाए किराम के अज़दहाम में फरिश्ते आपको पहना रहे थे। हजरत शेख मुकर्रम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस वक्त औलियाए किराम ने देखा कि कुतुबियत का झंडा आपके सामने गाड़ा गया और गौसियत का ताज आपके सरे मुबारक पर रखा गया, जिसको सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने खुद अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमाया, कसानी खलअतम बितिराजी अज़मी वतवजनी बितिजानिल कमाली, यानी मेरे रब ने मुझे उलुल अज़मी और बुलंद हतमी के खलात पहनाई और फजलो कमाल का ताज मेरे सर पर रख दिया। तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत वसाउ सुस्सादती कद बदाली, यानी जमीन व आसमान में मेरी शान के नकारे बजते हैं और नेक बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर होते हैं। अनल जी लियु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, यानी मैं जिलान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुहियुद्दीन है। मेरे अकबाल के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये ऐलान खुदाए ताला के हुक्म से था, जैसा कि हजरत अदी बिन मुसाफिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ लगा देने से अंधे और कोढ़ी शिफा पा जाते थे। फरमाया करते थे कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस ऐलान से मकाम फर्दियत मुराद है। अगरचे बाज दूसरे औलियाए कराम भी मकाम फर्दियत से नवाजे गए, मगर इसके अलावा के किसी को इजाजत नहीं मिली, जैसा कि आका गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी मकाम फर्दियत की तरफ इशारा करते हुए अपने कसीदा शरीफ में फरमाते हैं, अना फी हज़रति तक़रीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली, यानी कुर्बे इलाही की मंजिल में मुझे वो मकाम हासिल है जिसमें तन्हा और अकेला मैं ही हूँ और मेरा रब मुझे एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाता रहता है। अज़मतो जलाल वाला मौला मेरे लिए काफी है। हजरत अबू बकर बताइही रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बुजुर्ग हैं जिनको ख्वाब में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खरका पहनाया और जब ये बुजुर्ग ख्वाब से बेदार हुए तो खरका मौजूद पाया। उन्हीं बुजुर्ग का ये इरशाद है कि जो शख्स 40 बुध को मुसलसल मेरी कब्र की जियारत करेगा वो जहन्नम से आजाद हो जाएगा और जो शख्स मेरे रोजे में दाखिल हो गया उसको आग नहीं जला सकती। चुनांचे अब भी आपकी ये करामत है कि आपकी कब्र के पास गोश्त और मछली न पक सकती है न भुन सकती है। यही बुजुर्ग हजरत अबू बकर हवार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बरसों ये गैब की खबर दी थी कि इराक में 8 औलियाए कराम दर्जाए औताद पर फायज होंगे, जिनके मुबारक नाम ये है, हजरत मारूफ करखी, हजरत अहमद बिन हम्बल, हजरत बिशर हाफी, हजरत मंसूर बिन अम्मार, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सकती, हजरत सुहैल बिन अब्दुल्ला तस्तरी और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। और जब लोगों ने दरियाफ्त किया कि हुजूर ये अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, तो आपने फरमाया कि ये एक आजमी सैयद है जो गिलान में पैदा होंगे और बगदाद उनका मस्कन होगा और 5वीं सदी में उनका ज़ुहूर होगा और वो विलायत के मकाम फर्दियत की ऐसी अजीम मंजिल पर फायज होंगे कि एक दिन वो मिंबर पर ऐलान फरमाते हुए दिखेंगे कि कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह सुब्हान अल्लाह, यानी मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उस जमाने के तमाम औलियाए किराम अदब से अपनी गर्दनें झुकाकर अर्ज करेंगे कि ऐ गौसे आजम, आपका कदम मुबारक हमारी गर्दनों ही पर नहीं बल्कि आपका कदम मुबारक हमारे सरों और आंखों पर है। जो फरमाया कि दोषे औलिया पर है कदम मेरा, लिया सर को झुकाकर सब ने तलवा गौसे आजम का। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह ताला अन्हु जो इराक सैयदुल मशाइख और अमीरुल औलिया हैं, जिनके मुरीदों में सतर बादशाह
शाह भी थे और आपके झंडे के नीचे बाअदब चला करते थे। हजरत शेख एजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि मैं ख्वाब में हुजूर सरकार मदीना मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पुरबहार से मुशर्रफ हुआ तो मैंने अपने प्यारे नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हजरत मोहम्मद काकीस के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? तो हमारे हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के बारे में मुझसे क्या पूछते हो? वो तो उन लोगों में से हैं जिनके सबब से मैं कयामत के दिन फख्र करूंगा कि ऐसे ऐसे साहिब कमाल मेरी उम्मत में है। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला अन्हु 12 रजबुल मुरज्जब 417 हिजरी में पैदा हुए और 20 रबीउल अव्वल 501 हिजरी को बगदाद शरीफ के करीबी शहर में वफात पाई। हजरत मोहम्मद काकीस अजीम बुजुर्ग हैं। उन्होंने मेरे आका हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक जो फरमाया गौर से सुनिए। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला अन्हु जो बगदाद शरीफ में वाइज फरमाया करते थे और वो दौर था कि अभी हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदरसा निजामिया में एक तालिब इल्म थे और नौजवानी का आलम था। एक दिन सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी वाज सुनने के लिए गए और जैसे ही मजलिस में बैठे हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और फरमाया कि इस लड़के को मजलिस से बाहर निकाल दो। हुक्म पाते ही लोगों ने मेरे आका हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को हाथ पकड़कर मजलिस से बाहर कर दिया, मगर हमारे आका हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खफा और नाराज न हुए बल्कि फिर मजलिस में आकर बैठ गए। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला ने फिर हुक्म दिया कि इस लड़के को मजलिस से बाहर निकाल दो। लोगों ने हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला को निकाला और तमाम हाजरीन हैरत से देखने लगे कि अजीब लड़का है, बार बार मजलिस से निकाला जाता है मगर फिर चला आता है। हमारे आका सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला फिर भी रंजीदा न हुए और तीसरी बार फिर मजलिस में तशरीफ ले आए। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों, इस लड़के को मेरे पास ले आओ। लोग सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला को पकड़कर हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला के पास ले गए। हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला ने खड़े होकर मेरे आका हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की पेशानी का बोसा दिया और इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने इस लड़के को 2 मरतबा अपनी मजलिस से इसलिए निकाला ताकि तुम लोग अच्छी तरह इनको देख लो और पहचान लो कि ये कौन है। सुभान अल्लाह। तुम सब इस वली की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, इसलिए कि ये वो हैं जो मेरे बाद कुतुबुल अताब होने वाले हैं। फिर अपना आसा, तस्बीह, मुसल्ला वगैरह अता फरमा कर इरशाद फरमाया कि बेटा अब्दुल कादिर, अभी तुम्हारा बचपन है और हमारा बुढ़ापा है। हमारी आंखें देख रही हैं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि तुम कुतुबियत की अजीम मंजिल पर सरफराज होने के बाद ऐलान करोगे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो तमाम रूए जमीन के औलिया अदब व एहतराम से अपना अपना सर झुकाकर अर्ज करेंगे कि ऐ सरकार गौसे आजम, आपका कदम मुबारक तो हमारे सरों और आंखों पर भी है। फिर आपने अपनी दाढ़ी पकड़कर इरशाद फरमाया कि बेटा अब्दुल कादिर, तुम्हारा ये वक्त आए तो मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। और हजरत मोहम्मद काकीस रदी अल्लाह तआला ने ये भी फरमाया कि ऐ बेटा अब्दुल कादिर, हर मुर्ग बोलेगा और चुप हो जाएगा मगर तुम्हारा मुर्ग कयामत तक बोलता रहेगा, यानी तुम्हारा सिलसिला और तुम्हारी विलायत का तज़किरा कयामत तक जारी वो सारी रहेगा। हजरत शेख अली बिन नसर हैती रदी अल्लाह तआला बगदाद के उन 4 बुजुर्गों में से हैं जो मुर्दा को जिंदा फरमा देते थे। एक दिन मेरे आका सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के वाज की मजलिस में हजरत अली बिन हैती हाजिर थे। नागहा उन पर नींद का गलबा हो गया तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अपने वाज के मिंबर से उतरकर उनके पास बाअदब खड़े हो गए। जब हजरत अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला बेदार हुए तो अर्ज किया कि ऐ सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला, मुझको अभी ख्वाब में मुहतरम व मुकर्रम रसूल आजम प्यारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। तो हमारे आका हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, इसीलिए तो मैं मिंबर से उतरकर अदब व एहतराम से आपके पास खड़ा हो गया था कि आपको ख्वाब में दीदार नसीब हुआ और मैं सर की आंखों से प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पुरबहार से सरफराज हो रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा दे। खुदा के घर में अली की आमद
ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن، سنو حیدر مولا